बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट सब ये एक्सपेक्ट करते हैं अच्छा ये बैंकिंग में जाएगा, अच्छा हो सकता है चल सीए कर लेगी. How much do you think that learning German is important? Most of the students give TELC only, and Germany में TELC is very prominent, बहुत ज़्यादा famous है वो as compared to Goethe. जब मैंने जर्मन लैंग्वेज सुनी तब मेरे को था ये मेरे को सीखनी है. So my main motive was that I used to watch a lot of Bollywood films, and my favorite was कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम. ऑलवेज से कि यू शुड स्टार्ट एंजॉयिंग द लैंग्वेज. अब सेंटेंस स्ट्रक्चर को रटना नहीं है. आपका मेन मोटिव होना चाहिए कि मैं लैंग्वेज सीख लूं, बाकी एग्जाम का प्रेशर, एग्जाम इज इजी. Zen Südlichkeiten, तो उसको हमेशा ना स्मॉल बिट्स में डिवाइड करके पढ़ोगे तो इट इज वेरी इजी टू प्रोनाउंस, लाइक ze, hen and then Südlichkeiten. Hello and welcome to Learning Tree. ये है Learning Tree का first podcast with our guest, and today we have Mehak Bhasin and Shrishti Sharma with us. I would like Mehak Bhasin to give her introduction. Hello, my name is Mehak and I'm a C2 qualified German trainer associated with Learning Tree past 4.5 years. Thank you. Thank you so much, Mehak. Now I would like Shrishti to give her introduction. Hello, my name is Srishti. I'm C1 certified German trainer and I'm associated with Learning Tree from past 2.5 years, and also I'm working as a German teacher with Sapphire International School. Thank you. Thank you so much, Shrishti. So, मुझे पहले आप लोगों से पूछना है कि आपने जर्मन लैंग्वेज ही क्यों चूज करी पढ़नी. वी हैव अ लॉट ऑफ लैंग्वेजेस एंड जिनकी शायद और डिमांड भी होगी जर्मन से ज्यादा, बट व्हाई ओनली जर्मन? In Germany, we have public universities which most of people know now that it is free of cost. And the tuition fees is also very less as compared to other countries like UK, US, or even Canada, where students spend lakhs and lakhs of rupees. And here we just put a handsome amount of 30 to 40,000, and you have a very good degree. So yeah, that is a very good advantage of learning German. So, in addition to what Mehak said, I just would like to add one point. So, like I remember जब कोविड टाइम था और बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट सब ये एक्सपेक्ट करते हैं अच्छा ये बैंकिंग में जाएगा, अच्छा हो सकता है चल सीए कर लेगी. लेकिन मेरे को ऐसा था, कई लोग को होता है ना कि ऐसा कुछ करना है जो थोड़ा सा हटके हो, तो इसीलिए आई चोज जर्मन लैंग्वेज. एंड देन जब मैंने सुना, पहले ना मैं सुनती थी सारी लैंग्वेजेस, जब मैंने जर्मन लैंग्वेज सुनी तब मेरे को था ये मेरे को सीखनी है, क्योंकि उनका जो एक एक्सेंट है, उनका जो एक बात करने का तरीका है वो इतना ज़्यादा सही है, मतलब सुन के होता है ना कि मज़ा आ गया. तो दैट इज़ द रीज़न आई डिसाइडेड टू ऑप्ट फॉर जर्मन. परफेक्ट, दैट्स रियली गुड टू नो. सो अब मैं पूछना चाहूंगी कि जर्मन में जैसे देयर आर लॉट ऑफ डायलेक्ट्स, तो क्या उसमें डिफरेंस है? कैन यू गिव अस सम इनसाइट ऑन दैट? तो वी बेसिकली हैव, हमारे पास दो है, एक होता है हॉकडॉइच और एक होता है स्विस डॉइच. या सो हॉकडॉइच एंड स्विस डॉइच. सो वी बेसिकली हैव रीजनल डायलेक्ट कि जो मेन जर्मन है दैट इज हॉकडॉइच ओनली, और उसमें हम सी एच को से श बोलते हैं, लाइक वी से इश. एंड वही अगर हम बवेरिया में जाते हैं, लाइक स्विट्जरलैंड में जाते हैं, तो इट बिकम्स इक. So there are some differences to we basically have, but if we see overall Germany may or any European country where German is spoken, we have Hochdeutsch only in magazines, newspapers. We do not have the regional dialects there. Also, now I would like to ask from Shrishti that how much do you think that learning German is important for next 5 years? So, if we see the opportunities that Germany is providing nowadays, so when I learned German 3-4 years back, then still the competition was not much more. But now, if you see, like every other student is trying his level best to go to Germany. So, I think German language is providing a wide variety of job opportunities, not only in Germany but also in other countries as well. So that is the reason maybe nowadays people are preferring more to go to Germany for studies. ओके, एंड मुझे ये जानना था कि जर्मन में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम होते हैं, जैसे कि टेल्क एंड गोएथे इज देयर. सो हाउ मच द डिफरेंस इज देयर, या किसको कौन सा एग्जाम करना चाहिए?
ये आप थोड़ी सी बता सकते हैं इसके बारे में? सारी लैंग्वेजेस, सारे एग्जाम्स की इक्वल इम्पोर्टेंस है, बी इट कोएथे, बी इट टेल्क. We have USD also, but we generally do not recommend because that is a different exam. We have pronunciation differences जो Swiss German की तरफ जाता है. So specifically, if you go for Goethe and TELC, both are equally important, both have equal relevance. लेकिन गोइथे के at this point ना slots नहीं मिलते हैं. That is the like very much complaint that we get from students also कि slots नहीं है. So इसीलिए टेल का बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है. एंड इवन इन जर्मनी लाइक माई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गिव टेल्क ओनली. एंड जर्मनी में टेल्क इज वेरी प्रोमिनेंट, बहुत ज़्यादा फेमस है वो एज कम्पेयर टू गोइथे. अच्छा सृष्टि, आई वांट टू आस्क यू कि जैसे अगर एक बिगिनर है, कोई लैंग्वेज पढ़ रहा है, कोई सी भी, जरूरी नहीं है जर्मन लैंग्वेज, कोई भी एक बिगिनर है, हाउ कैन दे बी मोटिवेटेड? बिकॉज आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स मैंने जैसे लर्निंग ट्री में देखा है वो बीच में छोड़ देते हैं एंड देन दे से हमसे नहीं हो रही है लैंग्वेज, या किसी किसी को लगता है कि हमारी ये लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट है. तो हाउ डू यू थिंक दैट वी कैन कीप दैट मोटिवेशन टू कंटिन्यू विद द लैंग्वेज, बी इट एनीवन? सो व्हाट आर योर इनसाइट्स ऑन इट? So I would like to begin by answering this question from my personal experience. Honestly speaking, जब मैंने स्टार्ट किया था 10 दिन बाद मेरे को ये लग गया था ये मेरे से तो नहीं होगा, मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि vocabulary and all and grammar is like difficult, language is difficult. बट देन पहली चीज आपका एम क्लियर होना चाहिए कि मुझे अगर मैं जर्मनी जा रहा हूँ, मुझे पता है मेरे पास लैंग्वेज नहीं है तो कुछ नहीं है, मेरे से फिर कुछ नहीं हो पाएगा. तो इफ योर एम इज क्लियर वो आप फिर करोगे. सेकेंडली मेरे को लगता है कि यूट्यूब पे आजकल इतना मटेरियल है, आप यू कैन वॉच डिफरेंट सॉर्ट ऑफ movies, you can watch different sort of contents which will help you in staying motivated. और आप ना खुद से तरीके ढूंढो. जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहती हूँ कि वोकैबुलरी ये नहीं कि डिक्शनरी उठाई और रटना स्टार्ट कर दिया, वो कभी आपको हेल्प करेगा ही नहीं. आप क्या करो, आप अगर ट्रैवल भी कर रहे हो, आप अपने ऑफिस भी जा रहे हो, तो ऑब्जर्व करो. अच्छा मेट्रो में जा रहा हूँ तो आपको एक इंक्विजिटिवनेस होनी चाहिए. अच्छा इसे जर्मन में क्या कहते हैं, अच्छा अगर मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ तो प्लेटफॉर्म को जर्मन में क्या कहते हैं. अगर मैं शादी में भी जाती थी ना तो मेरे को होता था अच्छा प्लेट उठाई तो प्लेट को क्या कहते हैं जर्मन में, दूल्हा है तो क्या कहते हैं उसे जर्मन में. तो ये चीजें आपको खुद फाइंड आउट करनी पड़ेंगी कि क्या वेज हैं जो आप जिस चीज से आप इंटरेस्टिंग बना सकते हो लैंग्वेज को. तो जैसे महक, मुझे अब आपसे पूछना है कि कैसे कोई इंसान जो है rather than surrounding himself in the language, कोई ऐसी shows हैं, is there any some shows or maybe web series or any newspaper which a student can study apart from the curriculum which helps them get engaged with the language? Okay, so when I was learning the language, so my main motive was that I used to watch a lot of Bollywood films, and my favorite was Kuch Kuch Hota Hai, Kabhi Khushi Kabhi Gham. So I used to watch those dubbed movies in German that is very easily available on YouTube. तो मुझे ऐसा था कि कुछ कुछ होता है कि मेरे को एक एक सीन याद है, तो जर्मन में जब देखा तो पता था कि हाँ इस सीन में ऐसा होगा, तो वो बहुत इजी रहता था मेरे को समझने के लिए कि हाँ ये वर्ड्स बोल रहे हैं और इसकी ये ट्रांसलेशन होगी. तो दैट इज अ वेरी गुड वे ऑफ लर्निंग इट. For newspapers, we have Deutsche Welle. That is for weather forecast and very easy language like terms used also. And for dictionaries, you can definitely use Dict.se. That is a very very good dictionary rather than using a translator. Like हम बोलते हैं translators मत use करो, because जैसे हम translate करते हैं from English to German या German to English, वो बहुत different है as compared to any other language. So yeah, you can use Duolingo and other platforms for learning the language. Perfect. So now I want to ask you सृष्टि, क्योंकि आप स्कूल में भी पढ़ाते हो and I'm sure कि आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हो तो वो और ज्यादा एडल्ट से ज्यादा मिस्टेक्स करती होंगी. तो क्या ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं इन अ स्मॉल किड एंड इन एन एडल्ट जो एक स्टूडेंट को इशू आता है while learning the German? ओके तो पहली चीज तो मेरे को लगता है whenever a person is starting learning any foreign language, तो एक मिथ होता है कि ना अगर मेरे को अपनी नेटिव लैंग्वेज आती है और मैं वोकैबुलरी सीख लूँ तो मैं ना आराम से सेंटेंस बना लूंगा. लेकिन ये दिस इज अ बिग बिग मिथ, बिकॉज हर लैंग्वेज का अपना एक अलग स्ट्रक्चर होता है. तो जर्मन का स्पेशली बहुत रिजिड स्ट्रक्चर है, मतलब हर वर्ड की अपनी एक पोजिशन है.
तो दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट पीपल डू कि अच्छा वो दिमाग में इंग्लिश में सेंटेंस सोचते हैं एंड देन वो जर्मन में सेंटेंस लिखने का, तो वो पोजिशनिंग गेट्स रॉन्ग देयर. सो दिस इज वन मिस्टेक. एंड देन कमिंग टू प्रोनाउंसिएशन, फिर से वही कि प्रैक्टिस अगर आप नहीं कर रहे हो, तो ये मैं स्टूडेंट्स हु आर देयर इन ग्रेड 4 ऑल्सो मैं बोलती हूँ कि इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग आपको नहीं आएगा. ऑल्दो कंपैरेटिवली जर्मन प्रोनाउंसिएशन इज स्टिल इजी आई वुड से, क्योंकि जो आप लिख रहे हो ना आप ऑलमोस्ट वैसा बोल रहे हो. फ्रेंच और स्पेनिश की तरह नहीं है, लिखा कुछ है बोल कुछ और ही रहे हैं. तो जर्मन प्रोनाउंसिएशन इज स्टिल इजी, बट people they might or fumble if they don't practice. So yeah, these are the common mistakes and myths that people have. Okay, so one single piece of advice from both of you. What is that advice which you would like to give to German learners from your personal experiences? Like in Learning Tree, we have small groups of students, small groups of batches. So it's always better कि homework जब हम दे रहे हैं या फिर कुछ भी speaking practice दे रहे हैं तो आप अपने friends, fellows जो हैं उनके साथ बात करो, make small group of 2 conversation करो, and definitely come up in the class and speak, because जितना बोलोगे उतना better है. The pronunciation gets better, your vocabulary gets better. So yeah. Okay, now I would like to come to the exam preparation, क्योंकि लोगों का मोटिव होता है कि मुझे B1 क्रैक करना है, मुझे B2 क्रैक करना है. तो इफ़ आई टॉक अबाउट एग्जाम प्रिपरेशन, एग्जाम क्रैक करने की अप्रोच बहुत अलग होती है, क्योंकि आप सीखते तो रहोगे, सीखने का कोई लिमिट ही नहीं है, इट्स अ ओशन. तो लेकिन एग्जाम क्रैक करने के लिए बुक्स विच आई वुड रियली लाइक टू रिकमेंड आर Prüfungstraining, Fit Fürs, Goethe Certificat, Mit Erfolg. तो these are the 4 books which you can start, and then YouTube पे endless audios are available. तो आपको ना अपने ears को habitual करना है of listening to the language. तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सुनो, और स्पीकर को मतलब हमेशा मैं एक डिस्टेंस पे रखती थी, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर में आपको नहीं पता आपको आगे की सीट मिल रही है आपको पीछे की मिल रही है. तो आपको स्पीकर को हमेशा एक डिस्टेंस पे रखना है. एंड देन एज महक मेंशन की स्पीकिंग यू हैव टू डू विद अ ग्रुप, और अगर ग्रुप नहीं है, मतलब कोविड में मेरे पास नहीं था, तो मैं मिरर के आगे खड़ी हो जाती थी और कुछ भी सेंटेंस फ्रेम करके वो ऐसे अपने आप से कॉन्वर्सेशन में करती थी. सो या दीज आर द फ्यू एडवाइसेस. तो जैसे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं लर्निंग ट्री में कि वो एग्जाम प्रिपरेशन होते तक भाग जाते हैं, डर जाते हैं कि नहीं मैम हम एग्जाम नहीं दे पाएंगे, और अननेसेसरी बहाने बनते हैं. तो इसको व्हाट डू यू थिंक कि उनको क्या ऐसा करना चाहिए जिससे वो ना भागे फॉर द एग्जाम और एग्जाम प्रिपरेशन? तो इन इनिशियल डेज उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए कि उनको एंड ऑफ द कोर्स में फियर ना हो किसी चीज का? एग्जाम प्रिपरेशन हवा नहीं है, ठीक है. एंड इन लर्निंग ट्री ऑफ कोर्स कि ये नहीं है कि हम एंड तक एग्जाम ट्रेनिंग को छोड़ देते हैं. वी यूजुअली टेक 2 to 2.5 weeks, जिसमें जो स्टूडेंट है वो एकदम फेमिलराइज हो जाता है हाउ द लैंग्वेज वर्क्स, एंड देन वी स्टार्ट विद ह्यूरिन लिसनिंग प्रैक्टिसेस. वी डू अ लॉट ऑफ लिसनिंग, वी डू अ लॉट ऑफ स्पीकिंग, जिससे एक स्टूडेंट को एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ गोएथे का एग्जाम और टेल्क का एग्जाम ऐसा होगा. So even if you stay that 2.5 week consistently, you will not fear about Goethe or TELC exam at the end of the course. So I just would like to add on to this कि I always say कि you should start enjoying the language. अगर आप जो चीज़ सीख रहे हो अगर आप उसे enjoy कर रहे हो ना, तो एग्ज़ाम तो क्रैक हो ही जाएगा. आपका मेन मोटिव होना चाहिए कि मैं लैंग्वेज सीख लूँ, बाकी एग्ज़ाम का प्रेशर, एग्ज़ाम इज़ ईजी, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जो भी सीख रहे हो यू जस्ट एंजॉय दैट. एंड कुछ सीक्रेट हमें सॉसेस चाहिए आप दोनों से फॉर द ऑडियंस एंड द स्टूडेंट्स लिसनिंग टू दिस. हाउ टू गेट 90% अबव इन गोएथे एग्जाम? Speak, listen, repeat. Yeah, the more you speak, the more it gets better. जितना बोलोगे उतना अच्छा है, ठीक है. And even you don't have like a partner, as Shrishti said, sit in front of the mirror and speak. Because if you sit in front of the mirror ना, तो you know कि हाँ सामने कोई है, मुझे देख रहा है. So that is a very good way. And listen to podcast, very good way of improving. For vocabulary also, accent also, while traveling, metro में हो, train में हो, like wherever are you, listen to podcast. And for the exam preparation, I would like to add this point
कि for home practice also never listen to it with earphones. Always speaker, because Goithi telk में earphones नहीं होते, you have speakers. So yeah. And they only play audio for one time. Yeah, we have for different parts, but 2 times or 1 time. But yeah, you won't be able to repeat it again, listen to it again. Okay, so one thing that for the initial levels A1 and A2 specifically, प्यूफंग्स ट्रेनिंग को अपना गीता बना लो, क्योंकि प्यूफंग्स ट्रेनिंग में जो भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस हैं वो गोएथे के एग्जाम में वो वाली वोकैबुलरी आती है, घूम फिर के वहीं से आता है. एंड देन बिफोर अपियरिंग फॉर द एग्जाम, मतलब मेक श्योर यू आर लिसनिंग टू 20 ह्योरेंस एट लीस्ट. अगर आप 20 ह्योरेंस करके जा रहे हो, आई कैन बेट यू कि आप ह्योरन में अच्छा स्कोर करोगे ही करोगे. अच्छा, मुझे ये चीज आप दोनों से ही पूछनी थी, क्योंकि आप दोनों डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हो एंड डिफरेंट अप्रोच है आप दोनों की ही पढ़ाने की. मुझे ये चीज पूछनी है कि स्टूडेंट भी डिफरेंट आते हैं. किसी का ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छा होता है, किसी का स्लो होता है, कोई रीडिंग में अच्छा होता है तो कोई स्पीकिंग में अच्छा होता है. तो आप, क्योंकि ग्रुप ऑफ पीपल हमारे इधर 10 to 12 रहते हैं एक बैच में, तो हाउ डू यू एज अ ट्रेनर इंडिविजुअली हैंडल दिस? See, my teaching methodology is कि मैं हर एक स्टूडेंट से day 1 से स्पीकिंग कराती हूँ. ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ द सेशन द स्टूडेंट इज एबल टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ इन जर्मन. That is the one thing. And my technique is that 3 to 4 sessions are only vocabulary. Then we start with grammar. That is the very crucial part of learning any language. Plus, grammar को रट्टा नहीं मारना. वी लाइक जैसे मैंने इतने सालों में लर्न करा है, सीखा है, आई मेक एक्रोनिम्स. ठीक है, लाइक फॉर लर्निंग सेंटेंसेस ऑल्सो. अब सेंटेंस स्ट्रक्चर को रटना नहीं है. ठीक है, जैसे इंग्लिश से डायरेक्ट जर्मन में नहीं ट्रांसलेट करना, सेंटेंस हमेशा गलत होगा. सो आई गिव एन एक्रोनिम टू माई स्टूडेंट, दैट इज अ स्वॉन रूल, जिससे आपका सेंटेंस कभी गलत होगा ही नहीं. स्वॉन रूल. So yeah, we play quizzes, we play games, जिससे vocabulary भी improve होती है and वो student को interest भी आता है कि हाँ आज हमने ये करा है. Okay, and adding on to this, I guess after every topic, now we have endless live worksheets. तो फायदा ये है कि अगर बैच में 15 बच्चे हैं तो टीचर को 15 आंसर शीट्स चेक नहीं करनी, आप अपना खुद ही सेल्फ असेसमेंट हो जाता है. तो दिस इज अ वेरी प्रोग्रेसिव वे ऑफ लर्निंग. Then I would really like to thank my handwritten notes. तो like I always flaunt, you know, for every level. Like मैंने बहुत मेहनत करके जब मैंने सीखा था तब से अभी तक my teachers gave me, and that is what I am passing on further. तो कई students होते हैं कि हमें handwritten notes नहीं चाहिए, लेकिन फिर मैं उन्हें समझाती हूँ कि ये ना तुम्हारा मंत्रा है और तुम लिख लो मेरे से, these handwritten notes will work wonderfully for you. So yeah, that is one thing. And yeah, then again coming back to the apps, that you have several apps which you should follow nowadays in order to learn a language faster. ओके, सो एक और चीज मतलब बहुत ही मेजर है स्टूडेंट्स को, और बहुत ज्यादा शिकायत भी रहती है कि जर्मन वर्ड्स बहुत ह्यूज हैं. सो व्हाट इज दैट टेक्निक कि सारे स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं या जो जर्मन लर्न करना चाहते हैं, फर्स्ट थिंग उनका ये परसेप्शन कैसे चेंज हो, सेकेंडली वो कैसे लर्न कर सकते हैं इनको इजीली? फर्स्ट थिंग, जितने भी वर्ड्स बड़े हैं जर्मन में वो सारे बहुत इजी है प्रोनाउंस करने के लिए. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, बस उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करो. फॉर एग्जाम्पल ज़ेनस्यूडिशकाइटन, तो उसको हमेशा ना स्मॉल बिट्स में डिवाइड करके पढ़ोगे तो इट इज़ वेरी इजी टू प्रोनाउंस, लाइक जे हेन एंड देन स्यूडिशकाइटन. एंड बहुत मतलब उसको 2-3 बार बोलोगे तो वो काफी ज्यादा इजी हो जाता है प्रोनाउंस करने के लिए भी. ठीक है, वन लास्ट थिंग, we all know that you are perfect German trainers. Now say something in German for our audience and our students. This advice I would like to give to my students and everyone here also, that is, Übung macht den Meister, practice makes a man perfect. And there is one quote which is coming to your mind, is that Anfang ist leichter, aber Beharren ist eine Kunst, which means that beginnings are easy but persisting is an art. So keep yourself motivated and just enjoy whatever you are learning. Thank you. Thank you so much, Mehak and Shrishti, for coming here and telling our students and our audience as well that what is the importance of learning German language. Thank you so much.
Don't forget to subscribe Learning Tree, and if you also want more content like this, let us know in the comment section.